ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی مجلس میں تیسرا پارہ تلک الرسل مکمل ہوا۔ چوتھا پارہ لن تنالوا، اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی مجلس کا ایک مضمون جو ادھورا ہے اسے مختصر طور پر آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنا ہے، اور مضمون تھا کہ اسلام ہی واحد معتبر مذہب کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ اسلام ہی کیوں پسند ہے؟ آخر اسلام میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، ایسی کیا خصوصیات ہیں جس کے چلتے اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب سے اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، بلکہ وہی ایک دین اللہ کے یہاں قابل قبول اور منظور ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک خاص بات اسلام کی، اس کی ایک خاص خصوصیت یہ سنی تھی کہ اس کے نام ہی میں بڑا زبردست معنی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے جو نام ہیں وہ یا تو کسی شخص کی طرف منسوب کرتے ہوئے یا کسی علاقے کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان ناموں کو رکھا گیا ہے۔ یہودیت یہود کے قبیلے کی طرف منسوب ہے، عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب ہے، ہندوازم ایک نبی کے نام کی طرف منسوب ہے جو اصل میں سندھ نبی، اس کا تلفظ سندھ سے پھر ہند ہو گیا، اسی سے چلتے چلتے ہندوازم ایک مذہب بن گیا۔ جبکہ اسلام کا جو نام ہے بہت زبردست معنی اس کا ہے۔ اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار بنا کے پیش کرنا، اور اسلام کا ایک معنی آتا ہے امن و سلامتی، شانتی، پیس۔ یہ سارے معنی اسلام کو مذاہب کے ناموں میں اول درجہ دلاتے ہیں۔ جتنے مذاہب کے نام ہیں، اگر ناموں کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے، ناموں کے اعتبار سے اگر کسی مذہب کے نام کو اونچا درجہ دیا جائے تو وہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے نام میں وہ معنی اور وہ مطلب ہے جو کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اگر دوسری طرف ہم آئیں اور دیکھیں کہ ہر مذہب والے جو کتاب پڑھتے ہیں یا جس کتاب کی وہ بات کرتے ہیں، اس میں سے کسی بھی مذہب کے پاس آج کی تاریخ میں صحیح اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام نہیں ہے۔ بہت سارے مذاہب تو آسمانی بھی نہیں ہیں، وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کے پاس جو تورات کے نسخے، انجیل کے نسخے آج کی تاریخ میں موجود ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اسے آپ ورڈس آف گاڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ انجیل سے پہلے اللہ پاک نے تورات اور زبور نازل فرمائی ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل ضرور کی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن بھی
उसको कोट करता है, उसका जिक्र करता है कि वआतैना दाऊद ज़बूरा, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर किताब अता की, लेकिन उसकी हिफाजत का ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जैसे कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम है। चुनांचे मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 500 साल बाद उस किताब को लिखा गया। आप अंदाजा लगाएं, जिस किताब को नबी के जमाने में महफूज नहीं किया गया, उसे किसी भी शक्ल में डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर नहीं रखा गया, उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के 500 साल, 5 सेंचुरीज, 5 सदियां गुजर गई हैं, तो कितना उसमें सही हो सकता है, कितना उसमें मिलावट हो सकती है, कितनी उसमें लोगों की तरफ से मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ये हर आदमी कॉमन सेंस के जरिए से पहचान सकता है। उसे हम किसी भी तरह वर्ड्स ऑफ गॉड नहीं कह सकते कि ये वही ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने उतारी, नहीं कह सकते। तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, जिसका कुरान करीम में बार बार तस्वीरा आया, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, यकीनन हमने तौरात नाज़िल की जिसमें हिदायत है और नूर है, अल्लाह की तरफ से रोशनी है। वो तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो थी, तख्तियों में अल्लाह ताला ने, शीट्स में अल्लाह ताला ने पूरी तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की थी। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से 600 साल पहले बेबीलोन, जिसे उर्दू जबान में बाबिल कहते हैं, अरबी में कुरान में भी उस शहर का जिक्र आया है, बाबिल, जो इराक का एक शहर हुआ करता था, एंशियंट इराक, पुराना इराक, उसका एक शहर हुआ करता था बेबीलोन। तो वहां के बादशाह ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया और उस हमले में तौरात की जितनी तख्तियां थी, जो भी कुछ उसका रिकॉर्ड था, सब उसने फना कर दिया और यहूदियों का भी तकरीबन उसने सफाया कर दिया और जितने बचे थे उनको कैदी बनाकर ले गया। 100 साल तक वो उसकी कैद में रहे। बाद में अल्लाह ने उनको आजादी और रिहाई नसीब की। 100 साल की गुलामी के बाद वो आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले दोबारा तौरात अपनी याददाश्त से लिखते हैं। उनको जो याद है उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं वो कितना सही होगा। जैसे अल्लाह ने उतारी थी तौरात, क्या वैसे ही हूबहू वो होगी या उसमें इनकी तरफ से हद को इजाफा होगा? हर आदमी इसका फैसला कर सकता है। इसीलिए अब की जो तौरात है वो तो और भी ज्यादा इसमें तब्दीलियां हो चुकी हैं। मौरखीन लिखते हैं कि आज के जमाने में यहूदियों के पास जो तौरात मौजूद है वो ओरल लॉस की शक्ल में है, यानी जबानी जो उनकी बातें, जैसे हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इस तरह की बातें हैं जो उन्होंने अलग अलग जमानों में उनको जमा किया। एक जमाने में उसका नाम मिशना रखा गया, फिर चंद सालों के बाद उसने और एडिशन हुए, उसका नाम हलका रखा, फिर और उसने एडिशन हुए, उसका नाम हगदा रखा, फिर और इन तीनों का मजमुआ बनाकर उसका नाम कलमूद या तलमूद रखा, जो आज के यहूदियों की मजहबी किताब है, कलमूद या तलमूद। उसमें इंसानों की तरफ से बहुत सारी बातें दाखिल कर दी गई हैं, मिला दी गई हैं। और अजीब बात यह है कि जो तौरात और इंजील, जितनी भी चीजें, इंजील तो बाद में आई, तौरात की जितनी भी चीजें थी वो बाबिल के बादशाह के हमले की जद में आकर के पूरी की पूरी तबाह और बर्बाद हो गई थी। इंजील का भी यही हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने सुरियानी जबान में, सीरियस लैंग्वेज, सुरियानी जबान में, मुल्क शाम की जबान थी वो, उसमें अल्लाह ने इंजील नाज़िल की थी। और आज आप पूरी दुनिया में सीरियस लैंग्वेज में इंजील नहीं दिखा सकते। पूरे जो उसके ट्रांसलेशन या वर्शंस हैं अंग्रेजी में हैं या दुनिया की दूसरी जबानों में हैं, तो आप कैसे उसे वर्ड्स ऑफ गॉड कह सकते हैं, अल्लाह का उतारा हुआ कलाम कह सकते हैं? और वो भी
जितने अलग अलग आप नुस्खे देखेंगे, कॉपीज देखेंगे बाइबल की, सब में आपको कमी बेशी नजर आएगी। यहां जो है वहां वो बदला हुआ है। उलमा लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ईसाइयों के बड़े पोप ने इस सूरत हाल का हल निकालने के लिए दुनिया भर के जितने इंजील के नुस्खे हैं सबको जमा किया, उसमें से 4 को सेलेक्ट किया गया और कहा कि आपसे यही 4 वर्शंस जो है हमारे ईसाइयों के यहाँ मुअतबर होंगे, उसी को फॉलो किया जाएगा। जाहिर सी बात है, 4 वर्शंस का मतलब चारों में अलग अलग तब्दीली है। वर्शन का मतलब ही होता है जिसमें तब्दीली हो। जैसे एक मशहूर उनका वर्शन है सर किंग जेम्स, ये उनका एक मशहूर वर्शन है, सर किंग जेम्स वर्शन। और अंग्रेजी पढ़े हुए अहबाब जानते हैं वर्शन का मतलब जो पुराने से जिसमें कुछ तब्दीली हो गई। इस तरह जो आसमानी किताबें हैं, ज़बूर हुई, इंजील हुई, तौरात हुई, सब में तब्दीली हो गई। हत्ता कि उनकी ओरिजिनल जबानों में तक वो मौजूद नहीं है, और वो जबानें भी आज ऐसी नहीं चल रही हैं जैसे अरबी चलती है। अरबी आज भी जिंदा है, अरबी जबान के पढ़ने पढ़ाने वाले आज भी हैं। उसके मुल्क जिसमें अरबी जबान सरकारी जबान है, बताते हैं 20 पर 1 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अरबी जबान सरकारी जबान है। ये जबानें जिसमें तौरात अल्लाह ने उतारी, इंजील अल्लाह ने उतारी, ज़बूर अल्लाह ने उतारी, आज वो जबानें जानने वाले भी नहीं हैं। तो किसी भी सूरत से ये किताबें आज की डेट में कुरान के अलावा या अल्लाह की उतारी हुई सही शक्ल में मौजूद नहीं है। ऑथेंटिक वर्ड्स ऑफ गॉड उनको नहीं कह सकते। दुनिया के और भी बहुत सारे छोटे बड़े मजहब हैं। बुद्ध मजहब है, बुद्ध मजहब के जो बानी थे गौतम बुद्ध, उनकी कोई खास किताब नहीं है, उनकी बायोग्राफी लोगों ने लिखी है। उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी बायोग्राफी लोगों ने लिखी। पहले तो वो अल्लाह का कलाम है ही नहीं, तो उसमें कौन सी सेहत होगी जो आप ये कहें कि ये अल्लाह का कलाम है? अल्लाह का कलाम है ही नहीं, वो तो नाज़िल ही नहीं हुआ। इसी तरह हमारे मुल्क में जो मजहब है हिंदू मजहब, इसमें भी जितनी किताबें मुकद्दस मानी जाती हैं संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखी गई है, सब इंसानों के जरिए से लिखी गई है। भगवत गीता है, व्यासा नामी ऋषि उन्होंने लिखी है। महाभारत है, ये भी व्यासा नामी जो ऋषि थे, उनके एक सेंट थे, एक बुजुर्ग आदमी थे हिंदू मजहब के, उनकी लिखी हुई है। रामायण है, वाल्मीकि की लिखी हुई है, वो भी एक बड़े हिंदू मजहब के आदमी थे। तो तमाम इंसानों के जरिए से लिखते हुए किताबों को लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ कुरान मजीद ही इस्लाम और मुसलमानों के पास वो किताब है जो आज से तकरीबन 1450-1500 साल पहले जिसका नुज़ूल शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ, आज तक वो मीम एक ज़ेर जबर के नुक्ते के हर्फ के बदले बगैर यूं का मौजूद। तो इसके एतबार से भी कहा जा सकता है कि जैसे इस्लाम का नाम सबसे आला है, इस्लाम का कलाम भी सबसे आला और सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही है, और वो हकीकी मानों में वर्ड्स ऑफ गॉड कहलाने के लायक है, खुदा का कलाम कहलाने के लायक है। ये कैसे महफूज हुआ? कुरान करीम कैसे इस तरह आज तक महफूज है बगैर किसी तब्दीली के? इसको जानने के लिए जर्मनी के एक थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोगों ने दुनिया भर के नुस्खों को, हर कंट्री के अलग अलग नुस्खों को मंगा के चेक किया, किसी में एक नुक्ते का, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं। तो वहां भी गोया उनको मानने पर वो मजबूर होना पड़ा कि कुरान मजीद ये आसमानी किताब है। कुरान जैसे अल्लाह ने उतारा था आज तक उसको मेंटेन किया गया है। इंसान क्या मेंटेन करेंगे? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है। जैसे 4वें पारे में सूरे हिज्र में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने ही कुरान को उतारा है, हम ही उसकी हिफाजत के जिम्मेदार। ये असल राज है इन किताबों की। जैसे उलमा बताते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर सहीफे, इन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद नहीं ली थी, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, क्योंकि कयामत तक इस किताब को हिदायत के वास्ते उतारा गया, इंसानों की रहबरी के वास्ते उतारा गया। किसी और कलाम को उतारा जाना नहीं है, कोई और नबी आने वाले नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह ने इसका बंदोबस्त कर दिया। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
مبارک دل پر جب قرآن اترتا تھا آپ اسے یاد کر لیتے تھے۔ پھر وہی لکھنے والے صحابہ ہوتے تھے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ، حضرت ابی بن کعب، یہ سب کاتبین وحی صحابہ ہیں۔ ان کے ذریعے سے قرآن جتنا یاد اترتا تھا حضور لکھواتے تھے، حضور سے سن کر صحابہ حفظ کرتے تھے۔ تو ایک تو حضور حافظ ہیں سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے ہزاروں صحابہ حافظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل امین کو پورا قرآن سناتے تھے، دور ہوتا تھا پورے قرآن کا، حضور دور فرماتے تھے۔ اور جس سال حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آپ نے سنایا ہے، یعنی اول سے آخر تک، شروع سے آخر تک 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حفظ سنایا ہے۔ صحابہ میں حفاظ ہیں، اور کچھ صحابہ بھی بعد میں ریویژن کے لیے پتوں پر لکھ لیتے تھے، کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، چمڑے پر لکھ لیتے تھے، بعض ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے تاکہ ریویژن کے لیے آسانی ہو، یاد بھی کرتے تھے اور لکھے ہوئے سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ حضرت گرامی، خود حضور کے زمانے میں سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا، جیسے اللہ نے اتارا تھا ویسے حضور کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں۔ جنگ موتا ایک جنگ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس میں حافظ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ قاری اور حافظ صحابہ تقریباً بہت بڑی تعداد ان کی جو ہے دشمنوں کے حملے میں شہید ہو گئی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر مشکل ہوگی آنے والی امت کے لیے قرآن کو ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں چلا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی کاپیز بنائی گئی، 4 کاپیز اس کی بنائی گئی، جن سب کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کو پھیلایا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں تاشقند ایک کنٹری ہے، اسی طرح ترکی میں استنبول کے میوزیم میں وہ اوریجنل قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مرتب کرایا گیا تھا، جمع کرایا گیا تھا، وہ اصلی شکل میں موجود۔ حاضرین گرامی، آپ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، آج آپ بچہ جو حافظ ہے اس سے بھی ویسے ہی سن پائیں گے۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو ایک بچہ بھی آپ کو ٹوک دے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ لاکھوں حفاظ ہیں، اور اگر شروع زمانے سے ہوئے تو کروڑوں حفاظ مل جائیں گے۔ کسی مذہب میں ان کی آسمانی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ بھی اسلام کے سچے ہونے اور اللہ کے نزدیک سب سے معتبر ہونے کی ایک وجہ، اس کی ایک خصوصیت۔ حاضرین گرامی، تیسری چیز، ایک تو نام بہت اچھا اسلام کا، اس کا کلام سب سے سچا، تیسری چیز اس کے نبی کی سیرت۔ اسلام کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت اتنی زیادہ ریکارڈڈ ہے، ڈاکیومنٹ کی شکل میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی سیرت ان کے صحابہ نے اس طرح نہیں کی، نہ عیسائیوں نے، نہ یہودیوں نے، نہ کسی مذہب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت کے انتقال کے بہت سالوں بعد ان کی سبانی حیاتی کی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی، لیکن وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی تفصیل سے لوگوں نے لکھا، اتنے ڈیٹیل میں لکھا کہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ قلم جو چلا ہے اور جو لکھا گیا ہے، لوگوں نے قلم اٹھایا ہے، سب سے زیادہ وہ قرآن مجید پر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی سبجیکٹ پر، کسی عنوان پر، کسی ٹاپک پر سب سے زیادہ لوگ لکھے ہیں، لکھا ہوا مٹیریل آپ کو سب سے زیادہ قرآن کے بعد اگر کوئی ملتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ سب سے زیادہ کتابیں، کئی والیومز میں، 20-30 والیومز میں کتابیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، دنیا کی ہر بڑی زبان میں موجود، دنیا کی ہر بڑی زبان میں اویلیبل ہے۔ حضور کی سیرت آپ پڑھ سکتے ہیں،
और डिटेल इतना कि आप चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, खाते कैसे थे, सोते कैसे थे, मुस्कुराते कैसे थे, मुस्कुराते हुए कितने दांत नजर आते थे, ये सारी तफसील सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक में कितने बार वही थे वो भी नकल कर दिया। टोटल सर में और मुबारक दाढ़ी में 19 बाल सफेद थे। इतनी तफसील, आपकी हर हर अदा, आपकी हर हर बात को सीरत के जरिए से उम्मत तक पहुंचा दिया। तो जिस मजहब का नाम इतना ऊंचा, जिसका कलाम इतना सच्चा और जिसके नबी की सीरत इतनी डॉक्यूमेंटेड है और इतने सही तरीके से उसको जो है महफूज किया गया है, तो ये इस्लाम के सबसे सही और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर होने की एक वजह है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक खुसूसियत है उसकी। उलमा ने यहां तक ये भी लिखा कि अगर आप देखेंगे तो इस्लाम के अलावा जो दूसरे मजहब हैं वो जरा नेचुरल नहीं दिखते। अपने जमाने में नेचुरल थे, इस्लाम के आने के बाद वो इनवैलिड करार दिए गए, मनसूख हो गए वो। अब ऐलान यही है कि सिर्फ इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके को, शरीयत को, किताब और सुन्नत को मानना ही अल्लाह के यहां मंजूर है। तो अब अगर देखें तो इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो फिक्री नजर आता है, फितरत के ऐन मुताबिक, बिल्कुल फितरत से मेल खाता है। दूसरे मजहबों में देखेंगे तो आपको जरा कबूल नहीं करता, आपका दिमाग, आपका दिल इसे कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप देखें इबादत का जो तरीका है, कलमे का ही ले लीजिए। कलमे में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इतना पाकीज़ा के सारे खुदाओं की उसमें नफी की गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया गया। इतना जामे कलमा, इतना बेहतरीन कलमा किसी मजहब में आपको नहीं मिलेगा। फिर इस कलमे के पढ़ने के बाद जो इबादतें इंसान पर आती हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल हैं। सबसे बड़ी इबादत नमाज के आप औकात देखें, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सबको अल्लाह ने ऐसे सादे अंदाज में रखा कि हर आदमी फजर का वक्त, ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त पहचान सकता है। उसके लिए किसी खास नॉलेज की जरूरत नहीं, किसी खास इल्म को हासिल करने की जरूरत नहीं। सादे लोग भी सूरज देखकर, तारों को देखकर, चांद को देखकर नमाज का वक्त मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल फितरत के मुताबिक। उसके लिए जो शर्तें हैं, बदन पाक होना, कपड़ा पाक होना, सतर छुपाना, किबले की तरफ फिरना, सब नेचुरल हैं, सब दिमाग में बिल्कुल जो है कॉमन सेंस की तरह वो इधर दिमाग में उतरती हैं कि पाकी जरूरी है, अल्लाह के सामने खड़े हो रहे, पाकी जरूरी है। दूसरे मजहबों में पाकी का उतना एहतमाम नहीं है जितना एहतमाम इस्लाम में किया गया है। हाज़िरीन गिरामी, इसी तरह अगर आप देखेंगे कोई भी इबादत हो, अगर आप उसे जैसे पहला ऑप्शन है उसके मुताबिक कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो आपके लिए रियायत है। आप वुजू करें, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम आपके लिए है। आप खड़े होकर इबादत कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, इशारे से पढ़ सकते हैं। रमजान के रोजे पर भी किसी वजह से नहीं रख सकते, कज़ा कर सकते हैं। हर इबादत में इस तरह एक लचक रखी गई तो बिल्कुल फितरत के मुताबिक। ये मिसाल के तौर पर मैं मोटे अंदाज में बता रहा हूं कि इस्लाम की तमाम तालीमात में ऐन फितरत का लिहाज किया गया है। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब को आप देखें, यहूदियत के बारे में तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक तो उनका जो इबादत का दिन है वो हफ्ते का दिन है। उसमें ऐसी पाबंदियां हैं उन पर कि वो दुनिया का कोई कारोबार नहीं कर सकते हफ्ते के दिन, हत्ता के आग तक नहीं जला सकते, चाहे वो पकाने के लिए ही क्यों ना हो, आग तक नहीं जला सकते, इतनी सख्ती। अब इस्लाम में देखिए, आपको इबादत करना है, आप कारोबार भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ईसाइयत को देखें, वहां शादी नहीं करने को ज्यादा जो है, अगर आपको मजहबी बनना है, रिलीजियस बनना है, दीनदार बनना है, तो आप शादी नहीं करेंगे तो अच्छा है।
औरतें हैं तो वो चर्ची हो जाएं, नन्स बन जाएं, मर्द हैं तो पादरी बन जाएं। ये फितरत इसे कबूल नहीं करती, फितरत इसका इनकार करती है। अल्लाह ने एक इंसान के अंदर भूख की तरह एक जिन्स की ख्वाहिश रखी है। अब उसके खिलाफ करना कि ना शादी हो रहे हैं, ना कोई फैमिली है, बिल्कुल चर्च के होके रह गए हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। और दूसरे मजहबों में भी देखें आप, अजीब अजीब जो है वहां आपको ऐसे हकाम मिलेंगे। अगरचे कि अब मॉडर्न जमाने में लोग इसे नहीं मानते, लेकिन पुराने जमाने के एतबार से अगर देखेंगे तो बहुत सारे मजहबों में औरतों पर बड़ा जुल्म होता था और औरतों को इंसान भी नहीं मानते थे, मर्द ही को सब कुछ माना जाता था, औरत को कोई इज्जत नहीं थी, कोई दर्जा नहीं था। तो आइन फितरत के खिलाफ है। जबकि आदम की औलाद में मर्द भी हैं, औरत भी हैं, अल्लाह के बंदों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। जो दर्जा इनका है वो दर्जा उनका है, जो अहमियत इनकी है वो अहमियत उनकी है। बहुत सारे मज़ाहिब में बहुत देर के बाद औरतों को इंसान माना गया, औरतों को जो है कुछ हक मिला। सबसे पहले औरतों को इंसाफ दिलाने वाला, उनका हक बयान करने वाला, उनका दर्जा बयान करने वाला, मकाम बताने वाला, वरासत में हिस्सा दिलाने वाला इस्लाम था। इतनी ऐसी बातें हैं जो आप अगर एक एक करके देखते जाएं तो पता चलेगा कि इस्लाम ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है। दूसरे मजहबों में फितरत से जरा टकराव है। फितरत, अब मजहब ईसाइयत में इतवार का दिन इबादत का है, कोई और दिन इबादत नहीं, और चर्च ही में जाना पड़ेगा। अगर उनको खास इज्तिमाई इबादत करनी है तो उनको चर्च ही में जाना पड़ेगा। हमारे लिए मस्जिद में आओ, मस्जिद में नहीं आ सकते, सफर में हो, किसी भी जगह पाक जमीन पर आप जमात करके पढ़ लो। और रोजाना इबादत का दिन है, 5 वक्त की इबादत है। हाज़िरीन गिरामी, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये खुसूसियात, ये फज़ाइल और ये खास चीजें इस्लाम को सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर मजहब बना देती हैं। इसीलिए हदीस पाक में आया कि अल्लाह ताला सारे इंसानों के साथ इंसाफ करते हुए हर बच्चे को इस्लामी फितरत पर पैदा कराते हैं। जो भी बच्चा, चाहे वो किसी भी घराने में पैदा होता हो, इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। फिर बाद में माहौल की वजह से वो उधर जो है डाइवर्ट हो जाता है। अब मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ, मुसलमान रहता है, गैरों के घर में पैदा हुआ, पैदा होते वक्त इस्लामी फितरत है, लेकिन बाद में माहौल की वजह से बदल जाता है। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु यहूदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हर पैदा होने वाला, माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, हर न्यूबॉर्न वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। गोया अगर उसे माहौल खिलाफ का, बिगाड़ का माहौल न मिले, एंटी इस्लामिक माहौल न मिले, उसी तरह वो रहे तो मुसलमान बनेगा, क्योंकि उसकी फितरत कैसी है। उसे डिस्टर्ब न किया जाए, उसे किसी गलत रुख पर न ले जाया जाए, चाहे वो मुसलमानों के घर में ना पैदा हो तब भी वो मुसलमान बनेगा भाई नहीं था। लेकिन बाप का माहौल, उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या उसे ईसाई बना देते हैं। हदीस कह रही तो फितरी मजहब है, तो इसका नाम सबसे अच्छा, इसका कलाम सबसे सच्चा, इसके नबी की सीरत सबसे ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और सही तौर पर लिखी गई है। हर तफसील मौजूद है। इबादत का हाल भी मौजूद है, मुआशरत, हुजूर की घरेलू जिंदगी कैसी थी, हुजूर का दिन कैसा था, रात कैसी थी, सियासत कैसी थी, जंग कैसे लड़ते थे, लोगों के साथ मामला कैसे करते थे, अखलाक कैसे थे, नबूवत से पहले की जिंदगी क्या थी, बचपन क्या था, पूरी मक्के की जिंदगी क्या थी, मदीने की जिंदगी, हर चीज बुजुर्गान मोहतरम इतनी डिटेल में मौजूद है। मैंने बताया आपको कि कुरान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी मौजू पर लिखा गया है तो वह है सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह हमारा जो दीन इस्लाम है वो फितरी दीन है, फितरी मजहब है। यानी यूं समझिए बाई डिफॉल्ट हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। अगर उसे खिलाफ माहौल में ना ले जाया जाए, मुसलमानों के घर में भी ना पैदा हो, खिलाफ माहौल भी, तो वो रफ्ता रफ्ता
बाय हिज ओन, वो खुद मुसलमान बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने वो फितरत उसे दी है, बाई नेचर वो इस तरह पैदा हुआ है। हाज़रीन गिरामी, ये उलमा ने इस्लाम के पसंदीदा होने, मोतबर होने के चंद असबाब लिखे हैं, और भी इसके असबाब हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह मौका देंगे तो आप हज़रात व ख़वातीन के सामने मुख्तसरन उसे भी रखने की कोशिश की जाएगी। ये आखिर में हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम का एक मलफूज नकल करके मैं बात पूरी करता हूँ। हजरत बताते हैं कि एक जगह मज़ाहिब का कंपैरिजन था, किसी बाहर के मुल्क में मज़ाहिब का कंपैरिजन था, तो हजरत को वहां इनवाइट किया गया था कि इस्लाम ही सच्चा क्यों है, आप इस्लाम ही को सच्चा क्यों मानते हैं। इसी तरह यहूदियों के बड़े को बुलाया गया था, ईसाइयों के बड़े को बुलाया गया था, हर मजहब के बड़े लोग वहां मौजूद थे। तो हजरत का जब नंबर आया तो हजरत ने कहा कि हमारा मजहब इसलिए सच्चा है कि जिस जबान में वो किताब उतरी है, न सिर्फ वो जबान जिंदा है बल्कि वो किताब भी जिंदा है, वो जबान पे बोलने वाले लोग भी जिंदा हैं, उसके मानने वाले भी जिंदा हैं। कुरान जिंदा, कुरान की जबान जिंदा, कुरान को फॉलो करने वाली कौम जिंदा। और वही लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में अल्लाह ने उतारा था, एंजल हजरत जिब्रील इस्लाम लेकर आए थे, आज भी उसी जबान में मौजूद है। इसीलिए नमाज में आप अरबी के अलावा दूसरी जबान में किरात नहीं कर सकते। चंद दिनों पहले किसी साहब ने एक वीडियो आगे भेजा था कि कोई अफ्रीकी मुल्क है, वहां के लोग अपनी लैंग्वेज में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज नहीं होगी, किसी इमाम के पास नहीं होगी नमाज, किसी भी इमाम के पास नहीं होगी, अरबी ही में आपको नमाज पढ़नी है। सूरह फातिहा अरबी में पढ़ना है, जो सूरा पढ़ना है सूरत मिलाएंगे अरबी में करना है। कोई मुल्क है सेनेगल, कोई मुल्क है अफ्रीका का, वहां के लोग अपनी लैंग्वेज में, सेनेगल लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, उसी जबान में पढ़ना है, अरबी जबान ही में पढ़ना है। अब खुतबा मिंबर का अरबी जबान ही में देना है, कोई और जबान में नहीं। हत्ता कि हम खुतबे निकाह पढ़ते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है अरबी में पढ़ना, लेकिन किसमें पढ़ते हैं? अरबी ही में पढ़ते हैं। हम छोटी मोटी दुआएं भी कोशिश करते हैं कि अरबी ही में पढ़ें। कुर्बानी की दुआ अरबी में पढ़ें, रोजा खोलने की दुआ अरबी में पढ़ें, रोजा रखने की, हालांकि उर्दू में भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इस ऊपर से एक सिलसिला चला आ रहा है कि असल जो लैंग्वेज है उसी को हम लेकर के चलें। तो ये सारी चीजें इस्लाम के बरहक होने की दलील है। तो उनमें से किसी ने पूछा, वैसे तो इंजील भी तो अल्लाह की उतारी हुई किताब है, तो हजरत ने कहा थी, अब नहीं है। बताइए किस जबान में उतरी थी इंजील? तो उस पूछने वाले ने कहा कि सीरियस लैंग्वेज में उतरी थी। और आपके हाथ में कौन सी जबान में है? कहा कि इंग्लिश में है। तो ये कैसे अल्लाह का कलाम हो सकता है? अल्लाह ने उतारी थी सीरियस लैंग्वेज में, सुरियानी जबान में, और तुम्हारे हाथ में है इंग्लिश में, कैसे अल्लाह का कलाम हो सकता है? तो सबके सामने उसने माना, हाँ ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि तो अंग्रेजी है, अल्लाह का कलाम तो सुरियानी जबान में उतरा था। हाज़रीन गिरामी, इस तरह बहुत सारी खुसूसियात हैं। हजरत भी फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी हवाई जहाज में हजरत का सफर था, तो हजरत के बगल में एक अंग्रेज बैठा हुआ था, पढ़ा लिखा लग रहा था। उसने हजरत से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे दिल में एक डाउट है, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। आप स्कॉलर दिख रहे हैं, थियोलॉजिस्ट दिख रहे हैं, दीनी मजहबी आदमी दिख रहे हैं इस्लाम के। तो हजरत ने कहा ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ये आपके मजहब में अजीब है कि कलमा अगर पढ़ लेता है, इस्लाम को अगर मान लेता है, तो उसके हर काम पर उसे अजर मिलता है, मिनिमम 10 गुना मिलता है, और ज्यादा 700 गुना तक भी जा सकता है। इखलास जितना है उतना ज्यादा। लेकिन अगर कोई आदमी इस्लाम को नहीं मानता, कलमे को नहीं मानता, तो कितनी भी चैरिटी करे, कितना भी सदका खैरात करे, आखिरत में उसे कुछ मिलने वाला नहीं, आखिरत में उसे कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। इसका लॉजिक क्या है? वो पूछा हजरत से। अच्छा काम तो अच्छा काम है, सदका मुसलमान दे या ईसाई दे, मुसलमान दे या यहूदी दे, सदका तो सदका है, लेकिन इसमें क्या लॉजिक है कि मरने के बाद यहूदी और ईसाई को सदके का एक भी सवाब नहीं मिलता, मुसलमान को 10 गुना सवाब कम से कम मिनिमम मिल रहा है। तो हजरत ने एक कागज में लिख करके समझाना चाहा। हजरत ने एक नंबर लिखा, डिजिट 1 लिखा। हजरत ने पूछा कि कितना है? ये 1 है। हजरत ने उसके बाद एक 0 बढ़ाया, 10 है।
اس کے بعد اور ایک زیرو بڑھایا 100 ہے, اس کے بعد زیرو بڑھاتے چلے گئے تو ویلیو بڑھتی چلے گئی 1000 10,000 لاکھ. تو حضرت نے کہا یہ بڑھ رہا ہے, یہ کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ ویلیو اس کی زیرو کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یا شروع میں جو ایک لگا ہوا اس کی وجہ سے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک کی وجہ سے. اسی لیے جب وہ ایک کینسل کریں گے تو یہ پورا کیا رہے گا؟ صفر رہے گا. آپ سمجھیں لاجک کے طور پر کہ ایک کا کام وہ اسلام کرتا ہے, وہ کلمہ جو ہے وہ ایک کا کام کرتا ہے, وہ باپ کے پورے اعمال میں ویلیو بڑھا دیتا ہے. جتنے کام آپ اسلام کے ساتھ کریں گے, کلمے کے ساتھ کریں گے, اللہ کے نزدیک وہ ویلیویبل ہو جائیں گے, قیمتی ہو جائیں گے. بغیر اسلام کے کریں گے تو ایسا ہے جیسے 1 نہیں ہے شروع میں, پھر 0 لگ رہے ہیں, جسے اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی اس کا جو ہے حساب نہیں ہے. اس طرح ہوگا. حضرت نے باتوں میں اسے لاجک کے طور پر سمجھایا کہ حاضرین گرامی یہ بڑا بہترین مذہب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملا ہے. ہمیں اسلام کے ماننے والوں میں پیدا ہونے پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اسے بڑھانے کی فکر کرنی ہے, اسے اور ترقی پر لے جانے کی فکر کرنی ہے. یہ ترقی پر کیسے جائے گا؟ اعمال میں جتنی پابندی ہوگی, اعمال جتنا زیادہ ہم پابندی سے کریں گے, نماز فرائض جتنے پابندی سے ہم ادا کریں گے, اور گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. فرض پورا کرنا جتنا ضروری ہے, گناہوں سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے. گناہوں سے بچتے ہوئے, حرام سے بچتے ہوئے فرائض اور واجبات کو اگر پورے کریں گے, سنتوں کو پورا کریں گے تو اس ایمان کی نعمت میں اضافہ ہوگا, اسلام کی نعمت میں اضافہ ہوگا. ہم پکے مسلمان بنیں گے, حقیقی مسلمان بنیں گے, کامل مسلمان بنیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو مذہب اسلام کے ماننے والوں میں بنائے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے. اعمال کی پابندی کرتے ہوئے اور گناہ سے بچتے ہوئے اس نعمت میں بڑھوتری کرنے, اضافہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی جو چند باتیں رہ گئی ہیں اگلی مجلس میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھی جائیں گی. پھر انشاءاللہ سورۃ پارے کی آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ مجھے بھی مرتے دم تک اسلام پر اللہ تعالیٰ جینے کی, اور جب اپنا وقت آئے تو اسلام اور ایمان پر مرنے کی, اور آپ سب کو بھی اسی دولت کے ساتھ جینے مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا, اللهم اغفر لموتانا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما. اسے ذریعہ اور بہانہ بنا کر اے اللہ ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں اضافہ فرما. اے اللہ نعمت اسلام پر, نعمت ایمان پر ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں. مزید اس پر اے اللہ قدردانی کی, شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما. فرائض اور واجبات اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ گناہوں سے, حرام اور ناجائز سے بچنے کی ہم سب کو, ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما. مولا کریم مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر جینے, اور جب آخر وقت آئے تو اسی ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے, اور جانے سے پہلے اپنی آنے والی نسلوں, اپنی اولاد اور آنے والی جنریشن کے لیے اسلام کے بارے میں اللہ مضبوط بنیادیں چھوڑ کر جانے اور ایک اچھا نظام قائم کر کے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے احباب بیٹھے ہیں, مستورات آئی ہیں, سب کی دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. میرے زمین کو اللہ سروت کروت مغفرت فرما. پڑھنے والوں کو پڑھائی میں, کمانے والوں کو کمائی میں خیر و برکت کے اور ترقی کے فیصلے نصیب فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں پر, بالخصوص سوڈان کے مسلمانوں پر تیری رحمت اور تیری مدد نازل فرما. ان کے ہر ضروریات کا, کھانے پینے, رہنے سہنے, علاج کی ہر ضروریات کا پورا انتظام غیب سے تو فرما. اے اللہ ان کی خانہ جنگی کو ختم فرما, ان کے آپس کی لڑائی کو ختم فرما. اس لڑائی میں جن کا ہاتھ ہے ان کو ہدایت دے, اگر وہ اے اللہ ہدایت سے محروم ہے تو ان کو رشتے نابود فرما.
غزہ پٹی میں، فلسطین میں جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ ایسے ظالموں کو بھی ہدایت دے۔ اگر وہ ہدایت سے محروم ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو ان کو بھی نشت و نابود فرما اور فلسطین کی آزادی کو ابدی فرما، ہمیشہ کے لیے ان کو امن و امان نصیب فرما، ان کے ہر ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، پوری دنیا کے اور خصوصاً ہندوستان کے نارتھ میں اور تمام صوبوں میں امن و امان قائم فرما، اور جتنے لوگ اللہ ہندوستان میں پریشان ہیں کسی بھی لائن سے، ان سب کو اللہ غیبی مدد فرما۔ مولا کریم اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی، خانقاہوں اے اللہ درگاہوں کی، مکاتب کی، مسلمانوں کے اداروں کی، انسٹیٹیوشنز کی، ہاسپٹلز کی، اور جتنے ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بڑوں کی اے اللہ عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ طاقت و قوت کے ساتھ ان کے فیض سے ہمیں مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، ان کی صفوں میں مضبوطی پیدا فرما، اے اللہ پڑھائی کے میدان میں اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے غلط اے اللہ غیر قانونی کام سے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، ڈرگس سے، نشے کی عادت سے ہمارے بچوں کی بالخصوص پوری حفاظت فرما، اسی طرح سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بھی ہماری حفاظت فرما، کسی بھی طرح اے اللہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو اے اللہ مصیبت میں ڈالنے سے ہر علاقے میں مسلمانوں کی پوری حفاظت نصیب فرما، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوری حدود کے اندر رہتے ہوئے اے اللہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے اور اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں اسے پوری فرما، اے اللہ جتنے بھی قرضدار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جتنے بے شادی شدہ ہیں ان کی اے اللہ نیک رشتوں کی اے اللہ کو سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، ہم سب جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار، تابعدار، وفادار بنا، اے اللہ مولا کریم مسلمانوں کو اے اللہ ہر جائز میدان میں ترقی عطا فرما، آنے والی نسلوں کے لیے اے اللہ ابھی سے مسلمانوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو ایک بہترین اے اللہ اسٹریٹجی اور لائے ہوئے عمل اے اللہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاجزانہ دعا محض اپنے فضل و کرم سے آقا عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، اس مجلس میں آنے والوں کو اے اللہ اس کا تعاون کرنے والوں کو اس کے مسجد کو پھیلانے والوں کو سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔